Hello, welcome to the online learning platform of Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bad Gandhinagar. Myself, Professor Gaurang Patel, your instructor for the course Analog and Digital Communication. Before starting today's session, let's discuss about the syllabus of this course. The subject code for this course is 3151104 and subject name is Analog and Digital Communication System. If you look at the teaching and examination scheme, then there are 4 lectures per week. There is no tutorial and there is one practical session of 2 hours per week. The total credit of the course is 5. And if you look at the examination marks, then there is a end sem exam of 70 marks, theory exam, and there is a mid sem exam of 30 marks. If you look at the practical marks, then there is a end sem examination viva of 30 marks and there is a internal exam of 20 marks practical. So total it turns out to be 150 marks. If you look at the syllabus content of this course, then there are total 6 chapters and the title of this course is Analog and Digital Communication. So first 3 chapters covers the analog communication and remaining 3 chapters from chapter number 4 to 6 covers digital communication. So at the end of this course, students will able to understand the basic concept of communication system, basic concept of analog and digital communication, and what is the difference of analog and digital communication and what are the advantages of digital communication over analog communication. So today we will start chapter number 1, that is Introduction to Communication System. So in today's session we will discuss about the following topics. So in this chapter we will focus on the following topics. First is the what is communication, second is the basic block diagram of communication system, third analog and digital messages or signal, fourth channel effects, signal to noise ratio, channel capacity, modulation and detection, history of communication, signal transmission through linear system. So last 3 topics are just a revision of your signal and system course that you did in your 4th semester. So in this topic, that is signal transmission through linear system, we will consider the communication system as a linear system. We will pass signal through that system and we will observe the output. We will discuss about the signal, energy and power, and last we will conclude this chapter with the energy and power spectral density. So let's start with the first topic, that is what is communication. So first question that came in our mind, what is communication? So communication is the oldest branch of the electronics field. Communication system is the process of conveying information from one place to another place. Okay, or it can also be defined as process of exchange of information between 2 entities or 2 individuals. And the information that we exchange, that will be in form of text, audio, video, picture, music, computer data, etc. तो बच्चों ये कम्युनिकेशन क्या है कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने की एक प्रोसेस है. और कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम में बेसिकली 3 कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं. वन इज द सेंडर, another is the receiver, and in between sender and receiver there is a one communication medium which is known as a channel. The function of sender is to send the information, the function of receiver to receive the information sent by the sender, and the role of channel is to carry the information from sender to receiver. तो कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम में ये 3 बेसिक ब्लॉक्स होते, बेसिक कंपोनेंट्स होते है. Now let's look at about the basic block diagram of
communication system. So as you can see, there are number of blocks are there in this basic block diagram of communication system. First block is the input transducer. जो हमारी इंफॉर्मेशन जो होती है, that is साउंड, डेटा और एनीथिंग, और वो इंफॉर्मेशन जो होती है वो फिजिकल फॉर्म में होती है. कैसी फॉर्म में होती है? फिजिकल फॉर्म में. और वो इंफॉर्मेशन को हमें पहले इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी ट्रांसमीटर या रिसीवर है और उसकी जो सर्किटरी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ही प्रोसेस कर सकते हैं. तो इनपुट सिग्नल जो होगा उसको हमें इसके इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ट्रांसमीटर उसको प्रोसेस कर पाएगा. तो द रोल ऑफ इनपुट ट्रांसड्यूसर इज टू कन्वर्ट the input information signal into its electrical equivalent form, and best example of input transducer is microphone. So microphone is the best example of input transducer. और माइक्रोफोन का काम क्या होता है कि जो इनपुट सिग्नल होता है, दैट इज लेट से मान लो कि मैं अभी जो बोल रहा हूं, तो दैट इज माय स्पीच सिग्नल. तो स्पीच सिग्नल को उसके इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम इनपुट ट्रांसड्यूसर का होता है, और इनपुट ट्रांसड्यूसर का बेस्ट एग्जांपल है माइक्रोफोन. समझ में आ गया? तो फिर से द इंफॉर्मेशन जो भी होती है इन फॉर्म ऑफ साउंड, पिक्चर, डेटा, उसको हम डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये ट्रांसमीटर जो होता है, जो सिग्नल को प्रोसेस करता है, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फिजिकल सिग्नल को प्रोसेस नहीं कर पाती. वो किसको प्रोसेस करता है? वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्रोसेस करता है. तो इसीलिए हमें जो साउंड, डेटा एक्सेट्रा जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हमें सुटेबल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, एंड वो काम कौन करेगा? इनपुट ट्रांसड्यूसर. एंड बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनपुट ट्रांसड्यूसर इज माइक्रोफोन. ओके, नाउ नेक्स्ट ब्लॉक इज द ट्रांसमीटर. सो द फंक्शन ऑफ ट्रांसमीटर इज टू convert electrical equivalent of the information to the suitable form that could be transmitted over the channel. ट्रांसमीटर का काम क्या होता है? जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सिग्नल आया है इनपुट इंफॉर्मेशन का, उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना कि जो चैनल थ्रू इजीली ट्रांसमिट हो सके और रिसीवर तक पहुंच सके. ओके, समझ में आया? सो द रोल ऑफ ट्रांसमीटर इज टू प्रोसेस द सिग्नल, सिग्नल को प्रोसेस करना, और प्रोसेस करके ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना, ऐसे सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना जो चैनल थ्रू ट्रांसमिट हो सके और वो रिसीवर तक पहुंच सके. ओके, और दूसरा काम ट्रांसमीटर का ये भी होता है कि वो सिग्नल के पावर लेवल को इंक्रीज करने का, सिग्नल के पावर लेवल को इंक्रीज करने का. एंड इफ द पावर लेवल ऑफ द सिग्नल इज इंक्रीज, देन इट कैन कवर द longer distance. It can cover the longer distance, because communication में हमारा गोल क्या होता है? We would like to transmit the information up to the longer distance. तो अगर आपको सिग्नल इंफॉर्मेशन को लॉन्गर डिस्टेंस तक भेजना है तो उसका पावर लेवल ज्यादा होना चाहिए. एंड ये ट्रांसमीटर भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है. इट कंसिस्ट ऑफ सर्किट सच एज अ एम्पलीफायर, मिक्सचर, ऑसिलेटर, पावर एम्पलीफायर एंड एक्सेट्रा. समझ में आ गया? ट्रांसमीटर का काम ये होता है कि जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट इंफॉर्मेशन का है, इंफॉर्मेशन सिग्नल का, उसको सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना. सुटेबल फॉर्म मीन्स ऐसा सिग्नल, ऐसा फॉर्म जो चैनल थ्रू पास हो सके और रिसीवर तक पहुंच सके. ओके, समझ में आ गया? ओके, नाउ नेक्स्ट इज द चैनल. दिस इज ऑल्सो नोन एज अ कम्युनिकेशन मीडियम. ओके, एंड चैनल का काम क्या होता है? सो द कम्युनिकेशन चैनल इज द मीडियम फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. मतलब ट्रांसमीटर से जो सिग्नल आया उसको रिसीवर तक पहुंचाने का काम चैनल का होता है और कम्युनिकेशन मीडियम का होता है. एंड इट कैन बी वायरलेस चैनल और इट कैन बी वायर्ड चैनल. सो अगर वो फ्री स्पेस है तो वायरलेस चैनल है. अगर देर इज एनी डेडिकेटेड फिजिकल मीडियम लाइक कंडक्टिंग वायर्स, cables, optical fiber, coaxial cable, then it is known as a wire line. It is known as a wire line channel. Okay, so depending on the which type of communication medium is used,
we have two types of communication system. One is the wireless communication system. वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में चैनल जो होती है, मीडियम जो होता है वो होता है फ्री स्पेस और एयर. एंड इन केस ऑफ वायर लाइन कम्युनिकेशन जो मीडियम होता है वो फिजिकल मीडियम होता है. देयर इज अ डेडिकेटेड फिजिकल मीडियम और फिजिकल केबल बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर. ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक और चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, दैट इज द नॉइस. अब नॉइस क्या होता है? सो बेसिकली नॉइस इज अ unwanted electrical signal which gets added to the transmitted signal when it is traveling from transmitter to receiver. जब भी सिग्नल ट्रांसमीटर टू रिसीवर ट्रैवल करता है थ्रू चैनल, देन उसमें नॉइस ऐड हो जाता है, नॉइस मिक्सअप हो जाता है. एंड नॉइस इज द अनवांटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल. एंड ड्यू टू दिस नॉइस द क्वालिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन विल बी डिग्रेडेड. ये नॉइस की वजह से हमारा जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है, जो चैनल थ्रू रिसीवर तक पहुंच रहा है, उसकी क्वालिटी वो डिग्रेड हो जाएगी और समटाइम्स द इंफॉर्मेशन मे बी लॉस्ट ड्यू टू द नॉइस. एंड वंस द नॉइस इज एडेड, द नॉइस कैन नॉट बी कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन. उसको कंप्लीटली रिमूव करना पॉसिबल नहीं है. कोई भी सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक आप यूज करेंगे तो भी इफेक्ट ऑफ नॉइस कैन नॉट बी कंप्लीटली रिमूव्ड. वी कैन मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ नॉइस. नॉइस की इफेक्ट को हम मिनिमाइज कर सकते हैं बाय सम सिग्नल प्रोसेसिंग. कुछ सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक का यूज करके हम नॉइस की इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन वी कैन नॉट कंप्लीटली रिमूव द इफेक्ट ऑफ नॉइस. ओके, एंड नॉइस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम. ये नॉइस कम्युनिकेशन सिस्टम का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है. ओके, और नॉइस कैन बी नेचुरल और मैन मेड. Okay, and so some source of the natural noise are like lightning, radiation from the sun and star etc. Okay, और अगर man made noise की हम बात करें, so man made noise includes noise produced by the electrical ignition systems of the automobiles, then welding machines, electrical motors etc. Okay, so noise को completely remove करना possible नहीं है, लेकिन we can reduce the effect of noise by using various techniques. Okay, now next is the receiver. Now what is the role of receiver? So receiver का काम क्या होता है कि जो भी सिग्नल चैनल से आ रहा है उसको रिसीव करना, एंड बेसिकली इट परफॉर्म्स द एग्जैक्टली रिवर्स ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसमीटर. ट्रांसमिशन में जो काम हुआ उसका एग्जैक्टली रिवर्स ऑपरेशन रिसीवर कर रहा है. एंड at the receiver, the received signal will be amplified, demodulated and converted into suitable form. Okay, and also at the receiver, it is an electronic circuit and it consists of some electronic circuit like mixer, oscillator, detector, amplifier etc. And last is the output transducer. So output transducer का काम क्या है? तो output transducer convert received electrical signal at the output of रिसीवर बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म. जो इनपुट ट्रांसड्यूसर ने फिजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया था, तो अगेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो रिसीव हुआ है रिसीवर से, उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम आउटपुट ट्रांसड्यूसर का है. एंड बेस्ट एग्जांपल ऑफ द आउटपुट ट्रांसड्यूसर इज द लाउड स्पीकर और लाउड स्पीकर. तो स्पीकर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आउटपुट ट्रांसड्यूसर. ओके, समझ में आ गया? तो दिस इज द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम. समझ में आ गया? ओके, नाउ नेक्स्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम का एक और क्लासिफिकेशन है जिसमें हम कम्युनिकेशन सिस्टम को दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. वन इज द एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम, अनदर इज द डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम. तो एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम और डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के बीच में डिफरेंस क्या है? सो in analog communication system the information is analog in nature. जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमीटर टू रिसीवर जा रही है वो एनालॉग फॉर्म में होगी. इन डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम द इंफॉर्मेशन इज इन फॉर्म ऑफ द डिजिटल. मतलब जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है ट्रांसमीटर टू रिसीवर वो डिजिटल फॉर्म में होगा. सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सिग्नल that is communicated through the system, we have two type of communication system, analog communication system and digital communication system. और ये दोनों तो हमारा कोर्स का
टाइटल है। ओके, ये कोर्स में हम ये दोनों के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम एनालॉग इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है और डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम डिजिटल इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है। तो ये एनालॉग एंड डिजिटल मैसेज क्या होता है, उसका डिफरेंस क्या है, उसको हम समझ लेते हैं। तो आई होप कि सिग्नल एंड सिस्टम के कोर्स में आपने एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल के बारे में पढ़ा होगा और इसका डिफरेंस भी आपको पता होगा। फिर भी एक बार हम क्विकली उसको रिवाइज कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट, एनालॉग एंड डिजिटल मैसेजेस। तो मैसेजेस दो टाइप के होते हैं, एक एनालॉग मैसेज, अनदर इज द डिजिटल मैसेज। तो ये फिगर में आप देख सकते हो, दिस इज अ फिगर ऑफ एनालॉग सिग्नल और मैसेज एंड दिस इज द डिजिटल सिग्नल और मैसेज। तो एनालॉग मैसेज किसको बोलेंगे? सो एनालॉग मैसेज और एनालॉग सिग्नल इज वन विच चेंजेस देयर मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली विथ टाइम। जो सिग्नल उसका एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड टाइम के साथ कंटिन्यूअसली चेंज करता है, वो सिग्नल को और वो मैसेज को हम बोलेंगे एनालॉग मैसेज और एनालॉग सिग्नल। तो आप देख सकते हो ये फिगर में, ये जो सिग्नल है वो साइनोसॉइडल सिग्नल है और ये सिग्नल का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। ओके, एंड बेस्ट एग्जांपल ऑफ द एनालॉग सिग्नल इज टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीच वेवफॉर्म एक्सेट्रा। ओके, एंड ऐसे भी बोल सकते हैं कि एनालॉग सिग्नल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। एनालॉग सिग्नल की वैल्यूज कितनी होती है, वो उसमें कितनी वैल्यूज होती है, इट कैन टेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। ओके, so what is analog signal? Analog signal is one which changes their magnitude continuously with time, or analog, we can also say that analog signal can take infinite number of values. So I can say that analog signal is the continuous in time as well as continuous in value. So अगर कोई सिग्नल टाइम में भी कंटिन्यूस है और उसकी वैल्यू भी कंटिन्यूस है कोई एक रेंज में, पर्टिकुलर रेंज में, तो उसको हम बोलेंगे एनालॉग सिग्नल। अगर हम डिजिटल सिग्नल की बात करें, सो डिजिटल सिग्नल इज वन विच हैज द फाइनाइट वैल्यूज। जो सिग्नल की वैल्यूज फाइनाइट है, जो सिग्नल फाइनाइट वैल्यू कंटेन करता है, उसको हम डिजिटल सिग्नल बोलेंगे। एंड बेस्ट एग्जांपल ऑफ द डिजिटल सिग्नल इज द बाइनरी सिग्नल। बाइनरी सिग्नल, ओके, तो बाइनरी सिग्नल में कितनी वैल्यूज होती है? बाइनरी सिग्नल है ओनली टू वैल्यूज, 0 एंड 1। ओके, तो आप देख सकते हो उसमें फाइनाइट वैल्यूज है, 0 एंड 1। ओके, तो कोई भी सिग्नल में अगर फाइनाइट वैल्यूज है और कोई भी सिग्नल में फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज है, तो उसको हम बोलेंगे डिजिटल सिग्नल। ओके, सपोज मान लो कि 0 to 9, अगर हम नंबर कंसीडर करें 0 to 9, तो उसमें फाइनाइट नंबर्स है 0, 1, 2, 3 अप टू 9, तो उसको हम बाय डिजिटल सिग्नल बोल सकते हैं। सो डिजिटल सिग्नल इज वन विच हैज द फाइनाइट वैल्यूज। कोई भी सिग्नल में अगर फाइनाइट वैल्यूज है तो उसको हम डिजिटल सिग्नल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट मैसेज, तो अगर कोई भी टेक्स्ट मैसेज आप लिखते हो तो उसमें कितने सिंबल्स होते हैं? फाइनाइट सिंबल्स होते हैं, फ्रॉम अल्फाबेट A to Z, तो उसको हम डिजिटल सिग्नल बोलेंगे। समझ में आ गया? सो डिजिटल सिग्नल इज वन विच हैज द फाइनाइट वैल्यूज और फाइनाइट लेवल्स, विच कंटेन द फाइनाइट लेवल्स। तो यहाँ पे एक और चीज में इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं कि स्टूडेंट्स का समटाइम्स स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि वो लोग ऐसा बोलते हैं कि डिजिटल सिग्नल मतलब 0 and 1। ऐसा नहीं है। 0 and 1 इट इज द कॉल्ड डिजिटल सिग्नल, बट डिजिटल सिग्नल इज नॉट ऑलवेज 0 and 1। 0 and 1 बाइनरी सिग्नल है, वो डिजिटल सिग्नल है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सब डिजिटल सिग्नल को में 0 and 1 ही होगा। ओके, समझ में आ गया? तो डिजिटल सिग्नल है फाइनाइट वैल्यूज एंड बाइनरी सिग्नल दैट इज 0 and 1 इज द एग्जांपल ऑफ डिजिटल सिग्नल। सो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल और डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल मैसेज का डिफरेंस दूंगा। तो पहले एनालॉग मैसेज का एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो मेरे पास एक टैंक है 100 लीटर कैपेसिटी की। सो लेट्स कंसीडर अ टैप दैट फिल्स टैंक ऑफ 100 लीटर कैपेसिटी इन 1 hour from 6 AM to 7 AM. The portion of filling the tank is varied by varying the time. मतलब जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस होगा वैसे वैसे टैंक भी फिल होती जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि आफ्टर 15 minutes, let's say at the 6:15 AM, the quarter portion of the tanks gets filled, where at
6:45 AM 3/4 ऑफ द टैंक इज फिल्ड। मतलब जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस होगा वैसे वैसे टैंक फिल होती जाएगी और 1 आवर के बाद, 1 घंटे के बाद टैंक पूरी 100 लीटर की टैंक फुल हो जाएगी। तो अगर हम ये चीज को प्लॉट करें, दैट इज इफ यू प्लॉट द टाइम एंड द पोर्शन ऑफ द टैंक दैट इज गेट्स फिल्ड, तो हमें ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ऐसे स्लैंट लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। तो आप देख सकते हो कि ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, इट हैव्स द कंटिन्यूअस वैल्यू। ओके, सो इट इज द एनालॉग सिग्नल, दिस इज द एनालॉग सिग्नल। यहाँ पे डिस्क्रीट सिग्नल नहीं है, ये कंटिन्यूअस सिग्नल है, मतलब वो कंटिन्यूअसली उसकी जो फीलिंग जो हो रहा है टैंक का, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई 1/4 पोर्शन फील हुआ, फिर बाद में थोड़ी टाइम के बाद कुछ भी फील नहीं होगा, फिर बाद में थोड़े टाइम में दूसरा 1/3 और 1/4 पोर्शन फील होता है, फिर बाद में थोड़े टाइम के लिए कुछ फील नहीं होता, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूअसली टाइम जैसे इंक्रीज होता है वैसे वो टैंक भी फील होती जा रही है। तो ये कंटिन्यूअस टाइम और एनालॉग सिग्नल का बेस्ट एग्जांपल है। अगर डिजिटल सिग्नल और डिजिटल मैसेज का मैं एग्जांपल दूं, तो कंसीडर वन क्लासरूम हैविंग 20 स्टूडेंट। एक क्लासरूम में जिसमें 20 स्टूडेंट्स हैं और वो स्टूडेंट की अटेंडेंस पर वीक अगर हम प्लॉट करें डे बाय डे, तो हमें ऐसे ग्राफ मिलेगा। तो आप ग्राफ में देख सकते हो कि मंडे जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट है वो लेट से मान लो 17 है। ट्यूसडे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट है वो लेट से मान लो कि 18 है। वेडनेसडे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट है वो मान लो कि 19 है। ओके, और थर्सडे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्रेजेंट है वो अगेन लेट से मान लो कि 18 है। ओके, मैं आपको समझा रहा हूँ, इट कैन बी एग्जैक्टली एनीथिंग। फ्राइडे सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्रेजेंट है वो अगेन 18 है एंड सैटरडे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्रेजेंट है लेट से मान लो कि 15 है। तो आप देख सकते हो कि ये जो डे बाय डे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, वैल्यूज है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, वो फाइनाइट है। मतलब पहले दिन 70 स्टूडेंट्स है, दूसरे दिन 18 एंड सो ऑन। तो ये फाइनाइट लेवल्स है, उसमें कितने लेवल्स है? फाइनाइट लेवल्स है, फाइनाइट वैल्यूज है। और अगर मैं डे ऑफ फिक्स भी, अगर मैं हम एक्स एक्सिस की भी बात करें तो वो भी डिस्क्रीट है। तो ये डिजिटल सिग्नल का एक एग्जाम्पल है। इफ यू प्लॉट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डे बाय डे, देन दैट इज द डिजिटल मैसेज और डिजिटल सिग्नल। ओके, तो बच्चों ये हो गया एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल का डिफरेंस। ओके, एंड मोस्ट ऑफ द सिग्नल इन नेचर आर एनालॉग इन नेचर। मतलब नेचर में जितने भी सिग्नल है, मोस्ट ऑफ द सिग्नल आर इन एनालॉग फॉर्म। और अगर आपको उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना है तो आपको एक कन्वर्जन प्रोसेस करनी पड़ेगी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, उसको बोलते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। तो फिर से जितने भी मोस्ट ऑफ द सिग्नल है वो ओरिजिनली एनालॉग फॉर्म में होते हैं, नेचुरली एनालॉग फॉर्म में होते हैं, और उसको हमें अगर डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन प्रोसेस का यूज करके हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन प्रोसेस क्या है, उसको हम यही कोर्स में आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। ओके, समझ में आ गया? सो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया? आज के लेक्चर में हमने बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, व्हाट इज कम्युनिकेशन, बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। देन वी हैव आल्सो डिस्कस अबाउट द एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, एंड वी हैव डिस्कस अबाउट द एनालॉग मैसेज एंड डिजिटल मैसेज। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, लेट्स स्टॉप हियर। We'll discuss other aspect of this chapter in our next video lecture. Thank you very much.